Hello everyone. Today I am going to start optical rotation. Uh, Refractive index we have discussed in last class. Now let's start optical rotation. What is optical rotation? Uh, Discuss about the optical activity. So what is optical activity? That is many substance possess the inherent property to rotate the plane of incident polarized light. This is called optical activity. So what is then optical rotation is the angle at which the plane of polarized is rotated when the polarized light pass through a layer of one liquid. That is called optical rotation. Then the optical active substance are described as dextrorotatory or levorotatory, depending upon whether the plane of polarization is rotated clockwise or anti-clockwise. Okay. सपोज एक ये एंगल है, जैसे मैं हमारा एक कंपाउंड है, तो ये यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, और इसका जो रोटेशन होगा तो नेक्स्ट रोटेशन में यहाँ पे H ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मिरर इमेजेस टाइप. तो ये कैसे रोटेट किया है, अगर इसने इस तरह से रोटेट किया है यहाँ पर, तो ये रोटेशन जो है इधर H ग्रुप आ गया और यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, तो ये चेंज हो गया है यहाँ पर. तो ये हम लेके चलते हैं कि अगर हमारा कंपाउंड जो है वो रोटेट हो जाता है तो वो अपनी जो उसके फंक्शन ग्रुप हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं. तो वेदर अब ये डिपेंड करता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी है. और अगर ये हमारा जो कंपाउंड है इसमें जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन ग्रुप में चेंजेस आते हैं, तो उसकी हमारा जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं. सो नंबर वन इज बात करते हैं हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और इसको हम राइट हैंडेड भी राइट हैंडेड भी होता है. तो फर्स्ट है हमारा लिवोरोटेटरी में, ये है हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी. तो that means कि the substance which rotate plane of polarization of light towards right, okay, towards rights or clockwise, towards right or in clockwise direction are called dextrorotatory or right-handed. The dextrorotatory sign indicates the positive sign. तो यहाँ पे जो हमारे उसके ऊपर जो हम साइन लगाते हैं दैट आर, वो हम उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं. तो और सेकंड आता है हमारा लीवोरोटेटरी. लीवोरोटेटरी जो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट है, लेफ्ट हैंडेड और एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो साइन होता है वो हमारा आता है नेगेटिव. तो इन लिवोरोटेटरी द सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड लिवोरोटेटरी और लेफ्ट हैंडेड, एंड लिवोरोटेशन इज डेजिग्नेटेड विद द नेगेटिव साइन. तो ये हमारा नेगेटिव साइन है. फिर इन इंटरनेशनल फार्माकोपिया ऑप्टिकल रोटेशन इज, जो ये ऑप्टिकल रोटेशन है इस ऑप्टिकल रोटेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से. ऑप्टिकल रोटेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा और it should be expressed by angular degree. In SI system the optical rotation angle is expressed in terms of radians. Okay, in SI unit में ऑप्टिकल रोटेशन को कैलकुलेट किया जाता है रेडियंस में, रेडियन. ओके, देन हम अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन के लिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन. Now what is specific rotation? The specific rotation is denoted by alpha raised to the power t or delta.
is the rotation measured at the temperature T and the temperature T and the wavelength, and at the particular wavelength. तो यहाँ पे हमारा जो T है that is temperature and that lambda is the wavelength, given by a 1 mm thick of liquid or a solution containing 1 kg per meter cube of optically active substance. It is a fundamental property of chiral substances that is expressed as an angle of that is expressed as an angle at which the material rotates polarized light at a particular temperature, wavelength, and concentration. So specific rotation is based on temperature, wavelength, and concentration. Okay. So the formula for specific rotation is equal to 1 into C. अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये है स्पेसिफिक रोटेशन के लिए फॉर्मूला. In this formula, that T is the measured temperature, and this lambda is the wavelength of light employed at 589 nanometers, and that alpha is the observed rotation, and that 1 or L, ये हमारा है L, that is the path length, and C is the concentration in grams per milliliter. तो ये था हमारा ऑप्टिकल रोटेशन, definition of optical rotation and formula for optical rotation. Now measurement of how to measure the optical rotation. So measurement of optical rotation is used different types of instrumentation. तो मेनली जो ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट आर कॉमनली यूज एज पोलरीमीटर्स. Polarimeters are used to measure the degree of rotation of polarized light as it passes through an optically active materials. और उसमें instruments जो हैं वो हैं, instruments are, let's discuss about the instruments. First one is polarized. First जो हमारे polarimeters हैं, that polarimeter is consist of mainly light source. हमारा first source is polarimeter's main source is polarized लाइट सोर्स. ठीक है, मेन है हमारा लाइट सोर्स. तो फर्स्ट हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट का जो फर्स्ट पोलरीमीटर का जो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लाइट सोर्स. और नॉर्मली यहाँ पे लाइट सोर्स के लिए हम सोडियम वेपर लैम्प यूज़ करते हैं, सोडियम वेपर लैम्प्स. एंड सेकेंड वन इज पोलराइजर. Second one is polarizer. Then third one is analyzer. Fourth one is sample tube.
and last one is main detectors. Okay, so these are the parts of polarimeters. Important part is light source, और लाइट सोर्स में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सोडियम वेपर लैम्प. उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड पोलराइजर्स, एनालाइजर्स, सैम्पल ट्यूब एंड डिटेक्टर्स. अब हम लोग इसके डायग्राम की बात करते हैं, कौन कौन से डायग्राम्स हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला हमारा पार्ट था लाइट सोर्स. तो पोलराइज मीटर कैसे वर्क करता है, ये हमारा लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें हमने यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप यूज़ किया है. फिर इसके बाद सेकंड पार्ट हमारा आता है, ये यहाँ पे लाइट गई है, ये हमारा पोलराइजर. अब ये जो हमारी स्कैटर्ड लाइट है, ये इससे पास हो रही है पोलराइजर से. तो अब जब इससे पास होती है लाइट, तो ये किसी एक डायरेक्शन में हो जाती है ना. अब ये ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये बात कर रहे थे. तो पोलराइजर में जो स्कैटर्ड लाइट है दैट शुड बी इन सेम एक यूनि डायरेक्शन और एक सेम डायरेक्शन में हो जाती है. देन इसके बाद हम इसको पास करते हैं, ये लाइट पास होती है हमारी सैम्पल ट्यूब में से, सैम्पल ट्यूब में से लाइट पास हो गई. देन इट गोज टू द, ये है हमारा एनालाइजर. ओके, अब यहाँ से लाइट पास हुई, ये एनालाइजर है. और देन ये एनालाइज करने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं हमारे डिटेक्टर्स. ठीक है, ये डिटेक्टर्स हैं. तो ये लास्ट में डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है कि हमारी लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट किया है. तो हम उससे उसका लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और हम उसके स्पेसिफिक रोटेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर्स. तो ये हमारा एक पोलरीमीटर का एक जस्ट सिंपल डायग्राम था कि आपने यहाँ पे लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स से जो हमारी स्कैटर्ड लाइट है वो पोलराइजर में गई. फिर वो जो लाइट सोर्स है वो हमारा एक यूनिफॉर्म हो गया. उसके बाद हमारी सैम्पल ट्यूब में से पास हुआ, तो ये हमारा था सैम्पल ट्यूब. देन सैम्पल ट्यूब के बाद अगेन इट गोज टू द एनालाइजर, देन गोज टू द डिटेक्टर, और यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, देन प्रोसीजर फॉर दैट पोलराइजर या पोलरीमीटर. तो ये मैं आपको जो हमने डायग्राम बताया था, इस डायग्राम का एक जस्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देती हूँ. तो व्हेन द लाइट is passed through the polarizer, only light oscillating in one plane will leave the polarizer. The plane polarized light is introduced to the tube containing a solution with the substance to be measured. If the substance is optically inactive, the plane of polarized light will not change in orientation and the observer will read the angle, जो हमारा एंगल है अल्फा, ये जो एंगल है रीड एज 0 डिग्री. If the compound in the polarimetry cell was optically active, the plane of light would be rotated on its way to tube either clockwise or anti-clockwise direction depending on the nature of the compound. For clockwise direction, the rotation in degrees is defined as positive sign and called dextrorotatory. In contrast of counterclockwise or anti-clockwise is defined as negative sign and is called levorotatory. Okay, तो ये सैम्पल ट्यूब में से हमने पास किया तो वो डिफाइन करता है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन आने वाला है या नेगेटिव साइन आने वाला है, या फिर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि दैट अल्फा वैल्यू इज 0. देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ optical rotation in pharmaceutical field. So number one is identification and determination of optically active compound. Number one is to determine identification and determination of optically active compound. Second one is used in sugar industries. Polarimeters are used in the sugar industries to determine the quality of juices.
from sugarcane and refined sucrose. Often surface refineries used a modified polarimeter with a flow cell called saccharimeter. Okay, saccharimeter. Then it is applications in chemical industry. Many chemicals exhibit specific rotation as a unique property that can be used to distinguish it. Then fourth application is used in food, beverage and pharmaceutical industries. The concentration and purity measurements of sample which have specific rotation can be calculated with the polarimeter. This includes steroids, diuretics, antibiotics, narcotics, vitamins and analgesics. Then last application is polarimeter is used to remote sensing applications. Okay, so these are the applications of optical rotation. So this is optical rotation from my side, and okay, let's go for one numerical. Okay, one numerical based on optical rotation. So numerical is calculate the observed rotation of a solution is 0.6542 gram of S 1 amino 1 phenyl ethane which is diluted to a volume up to 10 ml with methanol at 20 degrees centigrade using the D line of sodium lamp and 1.00 decameter ट्यूब. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक वैल्यू है 10 ml, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है हमारी ट्यूब के बारे में जो हमने, ये जो ट्यूब थी ये हमारी ट्यूब. देन व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन थी हमारी इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू सी. तो अब हम वैल्यू पुट करें तो ये है हमारी वैल्यू, ये 0.6542 ग्राम, और इसको हमने डाइल्यूट किया था 10 ml तक. तो जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हो गई है अब हमारी 6.542 ग्राम इन 100 ml. ओके, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखें ये वाली. तो अब आ गई हमारी वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.00 dm इंटू 6.542 ग्राम इन 100 ml. तो ये हमारे सारी वैल्यूज़ को हमने सब मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा जो आएगा यहाँ पे आएगी वैल्यू है वो आएगी
-196 डिग्रीज। तो ये माइनस का दैट माइनस साइन इंडिकेट्स कि ये लीवो रोटेटरी है सैंपल, और हम इसको ऑप्टिकल रोटेशन को हमने कैलकुलेट किया। तो ये एक न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन ऑप्टिकल रोटेशन। सो गुड डे, let's meet in next class with next topic, that is dielectric constant. Good day.